Hi, congratulations on getting started in your journey of freedom from PCOS. In the next 60 minutes, I'm going to tell you 14 things that are extremely important for you to understand about how will you get freedom from PCOS. And more important, now that you have started your journey with an Ayurvedic treatment that is safe, natural and long-lasting, it's important for you to understand each of these things in detail. The number one reason why you get PCOS and which no one ever tells you, which is the root cause of the problem. How contraceptives or hormonal pills work in PCOS. And I know so many of you have tried this, have seen success only while it lasts, and eventually have given it up. And so, very natural for you to understand how the Ayurvedic line of treatment is now going to work for you. Having said that, you also should know what are the three different categories of PCOS in terms of the severity, and which is important to understand why does it take the required time that we recommend in PCOS. So depending on the severity, your duration of treatment varies, and which is why these points are extremely important. Of course, again, the number one question which you have in your mind, when will you get your first natural period without any OCP support? How can you be sure that these pills are safe? Why does Ayurveda take 6 to 12 months? And in this, along with my Dr. Aarti Patil, our Chief Ayurveda Gynecologist, I'm going to explain to you step by step what happens for the time frame. The known effects after you start consuming the pills, but definitely not the side effects. And therefore, what are the side benefits that you should start seeing once you have got started with these pills? Do these pills help in weight loss? Do the Ayurvedic pills help to improve your chances to conceive? Do these pills treat male pattern hair growth or hirsutism, which is a very common symptom of severe PCOS? And finally, all about PCOS and thyroid. So these 14 questions have been put together after our interactions with more than 10,000 women from different parts of India. Women who had different categories of PCOS, but all of them have come together with their belief in Ayurveda and to get freedom from PCOS. It's so heartwarming in my interactions with thousands of women, the way women have opened up about some of their intimate details, very personal narratives, something that they were not even comfortable sharing with their own mothers or sisters. But one thing that got all of them together was to gain freedom from PCOS and get this in a very natural and in a very sustainable manner. So hear it directly from these women who are going to share with you in masterclass some of their stories which are going to be extremely powerful, and I hope it gives you the energy, the trust and the confidence that you need to consume the Ayurvedic pills for 6 to 12 months. So let's get started and get you freedom from PCOS. मॉडर्न मेडिसिन में पीसीओएस का रूट कॉज अननोन है, लेकिन आयुर्वेदा ने पीसीओएस को बहुत ही बखूबी और बारीकी से समझा है। आयुर्वेदा के अनुसार पीसीओएस का जो रूट कॉज है वो है पुअर डाइजेशन और पुअर मेटाबॉलिज्म। फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप जो खाना खाते हो वो आधा अधूरा पच जाता है। आधे अधूरे पचे खाने के साथ जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो भी काफ़ी पुअर क्वालिटी के होते हैं, और इनके साथ ही बनता है एक अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि टॉक्सिन्स जो बहुत ही चिपचिपे नेचर के होते हैं। इसीलिए हम इन्हें आम भाषा में स्टिकी टॉक्सिन्स कह सकते हैं। आयुर्वेदा में इन स्टिकी टॉक्सिन्स को आमा नाम दिया गया है। ये जो आमा है ये न्यूट्रिएंट्स के साथ आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये आमा ब्लड के माध्यम से आपकी बॉडी की हर
एक सेल में पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये आपके ओवरी के सेल्स में भी पहुंच जाता है और ओवरी में जो सारे चैनल्स है उनको ये आमा ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से ओवरी का जो बेसिक फंक्शन है यानी कि एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये स्लो डाउन हो जाता है और आप में ओव्यूलेशन ढंग से नहीं हो पाता। अगर ओव्यूलेशन डिलेड हो रहा है या फिर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है तो इसका सीधा असर पड़ता है आपके पीरियड्स पे, जिसके वजह से आपको पीरियड्स डिलेड आते हैं या फिर आते ही नहीं। एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो गई है, जिसके वजह से आपका जो एग है वो छोटी साइज का रह जाता है, जिससे मेडिकल लैंग्वेज में इमैच्योर फॉलिकल कहते हैं। हर महीने ऐसे इमैच्योर फॉलिकल आपके ओवरी में तैयार होते रहते हैं। ये सारे इमैच्योर फॉलिकल मंथ ऑन मंथ आपके ओवरी में डिपॉजिट होते हैं, जिसके वजह से आपकी जो ओवरी है वो बल्की हो जाती है। आप जब सोनोग्राफी करते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है कि आपकी ओवरी बल्की हो गई है और बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल्स वहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये इमैच्योर फॉलिकल्स को ही पीसीओएस के सिस्ट कहते हैं। हमें अगर पीसीओएस की जड़ से ट्रीटमेंट करनी है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है ये जो आमा है जो आपके पूरे बॉडी में हर एक सेल में जा पहुंचा है, इसको आपके शरीर से बाहर निकाल के फेंकना जरूरी है। एट द सेम टाइम आपके ओवरी से भी इस आमा को जड़ से निकालना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका डाइजेशन इंप्रूव करना, जिसके वजह से आमा जो है वो आपके शरीर में दोबारा नहीं बनना चाहिए। पीसीओएस की पहचान होने के बाद ज्यादातर लड़कियां और औरतें लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं और वहां पे उनको मिलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि 21 दिन की गर्भनिरोधक गोलियां। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करते हैं ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ओवरी काम कैसे करती हैं। तो हर महीने ओवरी में एग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। हर महीने ओवरी में 3 से 4 एग्स रिक्रूट होते हैं और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दरमियान 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसमें से पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। इन 2 हार्मोन्स को रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहा जाता है। इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से आपके यूट्रस के अंदर का लाइनिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है, ये थिक होना शुरू हो जाता है और जब उस महीने में प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, ऐसे सिचुएशन में ये जो डेवलप हो गया हुआ एग है वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही एग डिसॉल्व होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन रुक जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सर्कुलेशन में ना होने की वजह से यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है उसका सपोर्ट चला जाता है और वो टूट टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन केमिकल फॉर्म में होते हैं। आप जब ये गोलियां लेना शुरू करते हो, ये गोलियां 21 दिन तक कंटिन्यूसली लेनी पड़ती हैं। इन 21 दिनों में हर रोज जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गोली के फॉर्म में आपके सर्कुलेशन में आ रहा है, उसकी वजह से आपके यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है वो डेवलप होने लगता है। 21 दिन के बाद जब आप ये गोलियां रोक देते हो तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो सपोर्ट ये इनर लाइनिंग को था वो चला जाता है और आपको पीरियड्स हो जाते हैं। पीरियड्स तो टाइम पे हो गए, लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन में एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस दरमियान आपके ओवरी ने कुछ काम किया? जवाब है नहीं। क्या आपके ओवरी में एग की ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई, ओव्यूलेशन हुआ? जवाब है नहीं। क्या पीसीओएस का जो रूट कॉज है आमा, क्या इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के वजह से वो आपके शरीर से बाहर निकाला गया? नहीं। ओवरी में जो मल्टीपल सिस्ट बने हैं, इमैच्योर फॉलिकल जमा हुए हैं, क्या वो रिमूव हुए? नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से इन पीसीओएस की शुरुआत हुई थी वो है आपका पुअर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, क्या उस पे कुछ असर हुआ? और जवाब है नहीं।
I had PCOD in my teens only. Then I tried the original Ayurveda. I tried homeopathy. That also didn't work. Then one day randomly I came across Gynoveda on Instagram. Then I started ordering. So I took in September, October, November. I got my first periods in the month of December. I was very happy. I had PCOD in my teens only. I never got my periods naturally ever. Firstly, we went to a gynecologist. He said, "Don't have these hormonal pills. Like if I consume then hormonal pills, then only I would get. I would never get without hormonal pill." Then I tried the original Ayurveda. I tried homeopathy. That also didn't work. I guess after 21, 22, I was done with everything. Then one day randomly I came across Gynoveda on Instagram. Then I started ordering. So I took in September, October, November. I got my first periods in the month of December. I was very happy. Even my mom was happy. Then and my mom, she started taking detox pill because she saw good results in me. She started taking detox Oh, pill. lovely. Harsha, what changes have you noticed, both good and bad? So because of PCOD, my hair is very scanty. Yes. So I can see a difference in my hair. Skin is good. So in the lockdown when I was having the medicines, and I had seen a drop of 2 to 3 kgs in my weight overall. A big thumbs up to you. So to see the magic of Gynoveda, I think we should follow 3 things. One is the diet, one is the medicine, and one is the exercise. Yeah. I think very well said. पीसीओएस ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है शुद्धि और शक्ति। शुद्धि का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन और शक्ति का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग। शुद्धि प्रोसेस में आयुर्वेदिक हर्ब्स आपके बॉडी से स्टिकी टॉक्सिन्स को यानी कि आमा को पूरी तरीके से निकालकर बाहर फेंकते हैं। शक्ति के प्रोसेस में आयुर्वेदिक हर्ब्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक सेल को, खास करके ओवरी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओवरी के बेसिक फंक्शंस को रिस्टोर करते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेद साइंटिस्ट चरक ने शुद्धि के प्रोसेस के लिए 4 टॉप हर्ब्स बताए हैं और वो है पिप्पली, कांचनार, हरितकी और गोक्षुर। पिप्पली एक बहुत ही स्पेशल हर्ब है। पिप्पली आपके ओवरी में जो फंसा हुआ आमा है उसको ओवरी के सेल से अलग करता है और ओवरी के सारे चैनल्स ओपन करता है। कांचनार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। ये आपके ओवरी में जो इमैच्योर फॉलिकल्स जमा हुए हैं उनको डिसॉल्व करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। हरितकी और गोक्षुर शुद्धि कराने के लिए यानी कि डिटॉक्स प्रोसेस के लिए सबसे बेहतरीन हर्ब्स माने गए हैं। ये हर्ब्स आपके बॉडी में जो आमा सेपरेट किया गया है उसको आपके शरीर से बाहर निकालने का इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेद साइंटिस्ट चरक ने शक्ति प्रोसेस के लिए भी 4 टॉप हर्ब्स बताए हैं और वो है कुमारी, शतपुष्पा, शतावरी और दशमूल। इसमें जो कुमारी और शतपुष्पा ये हर्ब्स है वो आपके ओवरी में एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उस फंक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हैं। कुमारी और शतपुष्पा आपका टाइमली ओव्यूलेशन भी कराते हैं। इसके अलावा दशमूल में जो हर्ब्स आते हैं ये सारे ही हर्ब्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतरीन तरीके से नरिश करते हैं। इनके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रिस्टोर करके आपकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव करते हैं। शतावरी हर्ब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शतावरी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको ठीक करके हार्मोन को बैलेंस कराती है और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतरीन तरीके से नरिश भी करती है। पीसीओएस आयुर्वेदिक पिल्स में ये सारे ही हर्ब्स बहुत ही प्योर और ऑथेंटिक फॉर्म में डाले गए हैं। इसके साथ ही इसका जो प्रोसेसिंग मेथड है वो भी वैसा का वैसा फॉलो किया गया है जैसे प्रसिद्ध आयुर्वेद साइंटिस्ट चरक ने बताया है। इसके अलावा इनको बनाते वक्त कोई भी प्रिजर्वेटिव, केमिकल, स्वीटनर्स इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो आयुर्वेदिक पिल्स है इनका स्मेल थोड़ा कड़वा हो सकता है या टेस्ट भी थोड़ा कड़वा आ सकता है, लेकिन जो कड़वा है वो सच्चा है।
मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मुझे अपना पीसीओडी 2021 में अपनी शादी से पहले मुझे ठीक करना है। तो जब मैं रिपोर्ट मैंने देखा और मैं इतनी शॉक्ड, मतलब मैं जो ले रही हूँ वो मेरे लिए तो अमृत के समान है। मैं गायना वेदा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं जो रिजल्ट्स मुझे मिले उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं तो एक टीचर हूँ। मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मुझे पीरियड्स एक्चुअली बहुत लेट आए। स्कूल टाइम पीरियड मुझे आते थे तो इरेगुलर थे। मार्च 2020 में मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखा मुझे, उसमें मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे पीसीओडी। और फिर मैंने स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना चालू किए। इंटरनेट पे सर्च करती थी कि मतलब इसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत लोगों ने ये मतलब बताया कि हेल्थ पे वो बहुत गंदा इफेक्ट देता है। सो उसके बाद मैंने वो मेडिसिन लेना ही छोड़ दिया। मेरी एक फ्रेंड है श्रेया विश्वकर्मा करके, उसने खुद गायनोवेदा से तुला लेके मंगवा के पिया। 2 मंथ में उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए और शी वॉज वेरी हैप्पी। जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया तो अक्टूबर में मुझे पीरियड आया, नवंबर लास्ट में आया, दिसंबर लास्ट में आया, जनवरी लास्ट में आया। तो मैंने सोचा कि जनवरी में एक बार टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि क्या कंडीशन है। तो जब मैं रिपोर्ट मैंने देखा और मैं इतनी शॉक्ड, मतलब मेरे दिमाग में आया कि जब लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो मेरे दोनों ओवरी में सिस्ट था, अब कैसे एक ही ओवरी में सिस्ट बचा है। तो मैं जो ले रही हूँ वो मेरे लिए तो अमृत के सवाल है। जो मेरे को जो पीसीओडी जो इतने टाइम से था वो मैंने क्योर कर लिया। मुझको इतनी खुशी है उस बात की, मैं बता नहीं सकती मुझे इतनी खुशी हो रही। I can understand. कोई भी दिक्कत हो तो सपोर्ट करने के लिए गायनोवेदा इज ऑलवेज हियर। आई एम श्योर कि आप बहुत कीन है जानने के लिए कि व्हेन कैन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मेडिसिन, एंड इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू फील दिस वे। सो अब डॉक्टर आरती पाटिल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी कि हाउ आयुर्वेदा टेक्स टाइम टू शो रिजल्ट्स। और ये जो टाइम की हम बात कर रहे हैं ये टिपिकली वेरी करता है बिटवीन विमेन, एंड इट वेरीज because of the difference in the severity of PCOS. Not everyone has the same severity of PCOS. किसी को mild होता है, किसी को moderate होता है या किसी को severe होता है। आपका PCOS कितना क्रॉनिक है या फिर कितना सीवियर है, इसके हिसाब से ये PCOS 3 टाइप का हो सकता है। इसके 3 ग्रेड हो सकते हैं और वो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आपका PCOS माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है, इसका पता बड़े आसानी से आप खुद लगा सकते हो। इसके लिए बहुत ही आसान 4 क्राइटेरिया बताए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका पीरियड पैटर्न। अगर आपको पीरियड सिर्फ 1 वीक से लेट हो रहे हैं तो आपका PCOS माइल्ड है। अगर आपके पीरियड्स 2 to 3 वीक्स के लिए डिले हो रहे हैं तो आपका PCOS मॉडरेट है। और अगर आपके पीरियड 2-2 महीने नहीं आ रहे या 3-4 महीने तक नहीं आ रहे या फिर आपको पीरियड्स तब तक नहीं आते जब तक आप कोई मेडिसिन कंज्यूम ना करो, तो ये सीवियर कैटेगरी का PCOS है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है आपके PCOS के क्रॉनिसिटी पे। अगर आपका PCOS सिर्फ 6 महीने पुराना है तो ये माइल्ड PCOS है। अगर आपका PCOS 1 साल पुराना है तो ये मॉडरेट PCOS है। लेकिन अगर आपको ये PCOS की कंप्लेंट 1 साल से भी ज़्यादा समय तक है, 4 साल से है, 10 साल से है, 12 साल से है, ऐसे सिनेरियो में ये PCOS सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है आपके ओवरी के साइज पे। अगर आपने PCOS के लिए USG यानी कि सोनोग्राफी कर रखी है तो उसमें आपके ओवरी के साइजेस के बारे में बहुत क्लियरली बताया जाता है। अगर आपके ओवरी की साइज 10 cc के अंदर है तो ये माइल्ड PCOS है। अगर आपकी ओवरी की साइज 10 cc से 15 cc तक है तो ये मॉडरेट PCOS है। और अगर आपके ओवरी की साइज 15 cc से भी ज़्यादा है तो ये सीवियर तरीके का PCOS है। चौथा सबसे आसान क्राइटेरिया जो है वो है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। अगर आपको PCOS में किसी भी पॉइंट पे मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ डेवलप हो जाती है तो ये सीवियर तरीके का PCOS माना जाता है।
पीसीओएस की जड़ से ट्रीटमेंट कराने के लिए जो शुद्धि और शक्ति की प्रोसेस करानी पड़ती है वो ओवरनाइट नहीं होती। अगर आपको माइल्ड तरीके का पीसीओएस है तो आपको इस मेडिसिन का सेवन 6 महीने के लिए करना चाहिए। अगर आपका पीसीओएस मॉडरेट है तो आपको इन पिल्स का सेवन कम से कम 8 से 10 महीने के लिए करना ज़रूरी है। और अगर आपका पीसीओएस बहुत ही सीवियर है तो आपको इन पिल्स का सेवन कम से कम 10 से 12 महीने तक करना बेहद ज़रूरी है। So now that you are going to consume Myra and Vama, I know that the number one question that must be going on in your mind is when are you going to get your periods? Trust me, you're not the only one thinking like this. I think every woman who is going through PCOS is actually worried about this question. और ये बहुत natural है, right? Because as women, what is the number one visible sign of our reproductive health? It is us getting periods on time. And so it's important that you understand very clearly when will you get your periods after you start consuming PCOS Ayurvedic pills. There are two factors on which this depends. The first factor is how severe is your PCOS. जैसे अभी आपको डॉक्टर आरती ने एक्सप्लेन किया, PCOS के 3 कैटेगरीज है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एंड दीज 3 कैटेगरीज डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ओवरीज का साइज क्या है और आपकी ओवरीज की क्या रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स नॉर्मल फंक्शनिंग। If you have taken OCPs, oral contraceptive pills, or hormonal pills for a very long time, please understand that there is intense damage which has happened to your ovaries. And by damage, I mean that the normal functioning of your ovaries has stopped. तो जब आप OCPs ले रहे थे और आपको periods आ रहे थे उस दौरान, that's unfortunately not a natural period. That's a false period. And that is why you saw that when you discontinued taking OCPs, your periods did not come and you went back to the same problem. तो अब जब आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, the first thing that needs to be done is जो भी आपके ओवरीज का डैमेज हुआ है उसको हमें पहले पूरी तरह अंडू करना है। We have to get your ovaries to start functioning naturally. और इसका काम जो सारे हर्ब्स हमने हमारे पिल्स में डाले हैं उसके थ्रू आपको नेचुरल ओव्यूलेटरी सपोर्ट मिलता है। एंड वंस योर ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली आपको नेचुरल पीरियड्स आते हैं। द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर is along with the medicines and the power of herbs in those medicines, दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है to get natural periods is the gynovedic diet. Medicine without diet will definitely not work. And so both of them have to be done hand in glove for you to get results. अब चलिए बात करते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया और मेरा डाइट भी ठीक है तो क्यों मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे। सो अगेन आपने पूरी तरह समझा है कि व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ पीसीओएस और हैविंग सिस्ट्स इन योर ओवरीज। आपको अभी तक ऑलरेडी क्लियरली पता चल गया है आमा का रोल क्या होता है इस चीज में, और ये आमा को पूरी तरह आपके बॉडी से, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फ्लश आउट करने के लिए टाइम लगता है। और इसीलिए हर वुमेन का जो प्रोग्रेस है या जिस तरह उनकी बॉडी रिएक्ट करती है वो अलग होता है। माइल्ड केसेस में यूजुअली देखा गया है कि 30 days to 45 days ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज मेडिसिन के दौरान एटलीस्ट स्पॉटिंग या पीरियड्स चालू हो जाते हैं। इज इट अ गुड साइन? यस, इट इज अ गुड साइन बिकॉज इट इंडिकेट्स कि आपकी ओवरीज एक्टिवेट हो चुकी है। इन मॉडरेट केसेस anywhere between 45 to 60 days, कई केसेस में even up to 90 days periods नहीं आते। Is there anything that you should be worried about? I would say no. You should not worry about not getting periods during this time. I know ये difficult है, but it's important for you to maintain trust
एंड टू बी पॉजिटिव जब आप ये मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर जो प्रोसेस चालू हो चुका है वो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा। बट यू नीड टू रिमेंबर कि आपका आमा जो फ्लश आउट करने का प्रोसेस है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इट कुड हैपन कि आपको इस टाइम पे लोअर अब्डोमिनल पेन, PMS जैसे सिम्टम्स, मे बी स्लाइट मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी कुछ भी अगर हो रहा है, देन इट इज एन इंडिकेशन दैट द पीरियड्स आर गोइंग टू बिगिन इन फ्यूचर। फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू यू इंटरनली। आपके ओवरीज किस तरह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कैसे आपके ओवरीज में से सारा टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है, और कैसे ये मेडिसिन्स आपको ज़िंदगी भर के लिए वो फ्रीडम देगा कि आप कभी कोई पिल्स में नहीं रहेंगे टू गेट पीरियड्स। इन द थर्ड कैटेगरी, जो सीवियर कैटेगरी है, ये कैटेगरी डेफिनेटली रिक्वायर्स अ लॉट मोर टाइम फॉर इट टू सी रिजल्ट्स। कभी 90 डेज तक भी आपको बिल्कुल कोई पीरियड का साइन नहीं दिख रहा होगा। इनफैक्ट सो मेनी विमेन जो हमारे वेबिनार्स पे आती हैं, जो हमारी डॉक्टर टीम और मुझसे बात करती हैं, उन सबकी घबराहट, सबकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है पीरियड्स को लेके, दैट वी एक्सप्लेन टू देम दैट बाय डूइंग worrying about it, by constantly having anxiety about it, कुछ नहीं होने वाला है। More important is to stay calm, is to continue your medicines and focus on the Gynovedic diet and healthy eating habits. Let me share with you a couple of real stories, और आप खुद देख सकते हैं हमारे Facebook community पे women जब express करती हैं जब उनको periods नहीं आता और जब उनको periods आता है। अभी एक वेरी रिसेंट केस जहाँ पे हमारी एक मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है जो डेंटिस्ट है, जिनको बहुत सीवियर केस ऑफ PCOS है, और जब मैं उनसे बात कर रही थी एक्चुअली उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शी वॉज टेलिंग मी कि 4 महीने हो गए मेडिसिन लेकर, एंड आफ्टर द 4th month शी गॉट हर फर्स्ट पीरियड्स। और नेचुरली माई क्वेश्चन टू हर वॉज कि आपने अपने आप को कैसे इस टाइम पे इतना पेशेंट रखा, हाउ डिड यू बिलीव कि दीज मेडिसिन विल वर्क फॉर यू। तो उनका एक ही जवाब था कि जब मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, जो मैं जानती हूँ कि नेचुरल नहीं है और हार्मफुल है, जब मैं उसको इतना टाइम दे सकती हूँ, तो आयुर्वेदा जो सेफ है, नेचुरल है, और आपने कहा है कि इसे हमें कंटिन्यू करना है, तो मैं इसको क्यों छोड़ दूँ। एंड शी सेड कि जब मुझे पीरियड्स आए, आई कुड नॉट बिलीव कि आई गॉट पीरियड्स आफ्टर 18 months इन अ नेचुरल वे। सो माई ओनली सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि आप बस अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप के डाइट को जो आप फॉलो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, एंड लेट द मेडिसिन्स एंड द डाइट डू इट्स वर्क। इट कुड ऑल्सो हैपन कि जो मैंने आपको अभी टाइम फ्रेम बताए हैं फॉर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कई केसेस में चेंजेस हो सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन एवरी वुमेन्स बॉडी and how your body reacts to the detoxification process and the process of recovery. तो बट PCOD के कारण फिर वेट गेन था, थायराइड था, हर ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक भी किया, एलोपैथिक भी किया, सब ट्रीटमेंट था, कुछ हुआ नहीं। मम्मी इंसिस्ट करने लगे कि ये मेडिसिन ट्राई कर, जब इतना कुछ ट्राई कर चुकी है। तो विद इन 15 days मुझे पीरियड्स आ गए। मैम मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली। जब से मुझे मेंसेस स्टार्ट हुए फ्रॉम द एज ऑफ 14, शुरू से ही ना कभी भी रेगुलर नहीं थे। कभी आ रहे हैं तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गए, मतलब 1-1, 1.5 महीना आ रहे हैं। कभी नहीं आए तो 2 महीने नहीं आए, 3 महीने नहीं आए। हर ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक भी किया, एलोपैथिक भी किया, सब ट्रीटमेंट किया। बट कहीं ना कहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स कॉन्ट्रासेप्टिव देने शुरू कर देते हैं कि चलो रेगुलर हो जाएगा, 3 months के लिए खाइए। और मैम फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैरिज के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, मैरिज के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। बट वो वैसा कुछ हुआ नहीं। एकदम सही कहा। हाँ। One of the biggest lies। तो गाइनोवेदा के बारे में पता कैसे चला? तो मेरे मम्मी भी फेसबुक पे है, तो उन्होंने गाइनोवेदा की एड देखी। अच्छा।
तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेडिसिन ट्राई कर, जब इतना कुछ ट्राई कर चुकी है तो इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है। तो फिर मैंने लिया, तो विद इन 15 डेज मुझे पीरियड्स आ गए, जो कि मुझे पिछले 4 महीनों से आए नहीं थे। Apart from that, what are you feeling? Any positive, any negative? What are the other changes आपने एक्सपीरियंस किए हो आपके? मैम मुझे तो अभी तक पॉजिटिव ही दिखा है, मतलब ऐसा मुझे ये मेडिसिन खाने से कोई नेगेटिव नहीं दिखा। जैसे मतलब कई लोग बोलते हैं हेयर फॉल ये वो, बट से मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ। और मैम वैसे भी जब ऐसे थोड़े रेगुलर हो गए ना, तो खुद ही अंदर से मन इतना पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब तो मैम पॉजिटिविटी है, अब तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस टाइम तो। So I hope by now you've got answers to all your questions. We've been able to clear all the doubts that you had in your mind when you purchased Myra and Vama. But if there's still anything that we can answer for you, please do not hesitate to reach out to us. My doctor team and I will be very happy to assist you in every way for you to have a very memorable experience over the next 6 to 8 to 12 months. Whatever time it takes, please be assured that we are there with you in this journey at every stage, holding your hand step by step till we get you out of PCOS. You have also understood by now how the power of Ayurveda plays such a simple but a very solid role in getting you freedom from PCOS. We've also told you very clearly about the herbs that we use in our medicines and the entire concept of Shuddhi and Shakti, which are the two pillars of the Ayurveda medicine system, which gives you complete relief over a period of time. All our medicines come with the right purity and the right potency, and this is a very powerful combination, which is why when you start consuming the PCOS Ayurvedic pills, you start seeing positive signs of recovery within a short period of time. Our medicines are 100% natural. They do not contain any chemicals. They have no artificial preservatives. They are safe without any side effects. They also have FDA approval and GMP, which stands for Good Manufacturing Practices certification. So every time that you are going to be consuming Myra and Vama, both in the morning and in the evening, you should remember that you are actually taking food and nourishment, which is so important for you to come out of this problem. I was suffering from PCOD like since 5 years. There were so irregular periods and I have consulted 2 gynecologists there. They were like, it's just a small bubble. I kept on taking those hormonal pills. So all of a sudden, I did not get my periods using those pills also. I was worried when I started to notice acne on my skin and a sudden weight gain, which was never there. I was just going through the social media. I really wanted to know what is this and why is it harming me so much. That was an ad which I came through, Gynoveda. So I went there and there was a period test which you people had there on the website. So I thought that everything is so precise over there. So and everything is so relative. I could find out what exactly. So thereafter I took and what all need to be followed. Exercising, going to bed early and waking up early, and also avoiding carbs, avoiding junk foods. So it was really difficult to all of a sudden to stop all these things. After 2 months, I got my periods, and it was really. My mom was like, she was celebrating. she really was celebrating. Yeah. Oh, you got periods. Okay, this lockdown has helped you so much now. This Myra had been wonders in my life. Like seriously, no, I did not put on weight also. What message would you like to give in the Gynoveda community? So I would like to tell them that don't feel so low. In the name of awareness, there are being lot of fake things being spread about the PCOD. Follow the diet and take the medicines on time. So everything will be reversed and it can be cured is what my point is.
So now that you're going to take these medicines for 6 months, and you should know why is it recommended for 6 months. Let me help you understand a very simple way of remembering what happens inside your reproductive system once you start this course. So the first process which happens is detoxification, which is Shuddhi. And I'm sure by now you have become an expert on Shuddhi, and you can explain to other women who have PCOS or in the Gynoveda community when they ask you questions about what is Shuddhi and what it actually does. The second thing which happens because of Shuddhi is the entire balancing of hormones, the women hormones, which are estrogen and progesterone, which is also responsible for our ovulation and getting periods on time. So once the detoxification has started, and then you start seeing your hormonal balance coming back on track, the third thing that happens is actually your ovaries getting activated. This is a very, very powerful but a very intimate thing which none of us can observe. None of us can see what's going on inside our ovaries. But there is a natural process which has already got started. So once your ovaries have got started and it is inching towards natural ovulation support, the fourth thing that happens is that the resistance that the ovaries have tends to reduce. So you're moving into a stage of overcoming resistance. And by all this that is happening, we've already spoken about periods and when to get periods and how will your periods get processed over a period of time. So the fifth thing that happens is what we call as setting rhythm of your period cycle. And remember our entire conversation about how the number one question in your mind is about periods. So by this point of time, your periods have already started getting into a rhythm. And the sixth, which is the most important, the last but never the least, is about boosting the immunity of your reproductive system, जिसे हम कहते हैं शक्ति. So by doing all this, what happens is that the acidic blood in your body gets flushed out and it starts creating alkaline blood, which is very important for you never to fall into the trap of ama. And because of this 6-pronged process, it takes time. It is recommended to consume Myra and Vama for minimum 6 months, but it's not a mandate. In mild cases, definitely 6 months. In moderate cases, anywhere between 6 months to 8 months to even 10 months. In severe cases, you should be very well prepared that it's going to take time. And you need to give it the time. You owe that to yourself because you want to get freedom from PCOS. So give it at least anywhere between 10 to 12 months. Our intention is not to keep you on medicines forever. Our intention is to give you the required treatment which is right for you. And so once you come out of these medicines, you should not have to face this problem ever again. But remember that to make this happen, the Gynovedic diet is your secret weapon. Medicines alone will never work until you treat your food as medicine. So with the combination of Myra and Vama and supporting it with the right food, and most important is having a happy state of mind. I don't think we talk about it very openly, but remember, whether it's PCOS or any other kind of period problem, your mental health, your emotional state of mind is extremely important for your body to support the positive changes and to be able to get you out of this problem. And that's what we want to do. I want you to have a full life, a life where you can achieve your dreams, where you can do what you want to do and simply be the best version of yourself, whatever that may be. So have trust, give it time, and be patient. Let us help you gain freedom from PCOS.
Once you have started consuming the PCOS Ayurvedic pills, अगर आपको ये कोई भी तरह के signs या symptoms दिखते हैं, let me help you understand what does that mean. If you are getting black stools within 15, 20 or less than a month of consumption of these pills, then there is nothing to worry. This is a good sign in fact. It's a sign of detoxification. आपको पता है कि जो herbs हमने डाले हैं, which is हरी टकी, गोक्षूर, पिपली, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत बढ़िया करते हैं एंड विच इज़ वाई द ब्लैक स्टूल इज एन इंडिकेशन कि आपका डिटॉक्स प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. द सेकेंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है या यू आर नाउ गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड मोर ऑफन देन अर्लियर, तो लेट मी अश्योर यू कि ये पिल्स की वजह से वो नहीं हो सकता. द बेस्ट थिंग टू डू इज आपके डाइट में प्लीज इंक्लूड फाइबर रिच फूड एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप पालक विच इज़ ग्रेट इन फाइबर उसको इंक्लूड कीजिए. बनाना इज अनदर एक्सलेंट फ्रूट विच यू शुड हैव अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है. कंज्यूमिंग एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड. अगर आप कोकोनट वाटर भी आपके डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं देन दैट्स ऑल्सो एक्सलेंट एंड दिस कैन एक्चुअली बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू. The third thing, and especially as women, all of us, usually get very conscious जैसे ही हमारा acne breakout हो जाता है या हमारे pimples increase हो जाते हैं. Again, one thing to remember is that ये pills do not cause any kind of excessive acne breakout or pimples. हो सकता है कि initially आपको ये breakout दिखे, but anything which is coming out on your body after consumption of these pills, इसका इंडिकेशन बहुत पॉजिटिव है. इट मीन्स दैट योर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड. गिव इट टाइम, बी पेशेंट एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, हैव ट्रस्ट इन दीज मेडिसिन्स. ये स्टार्टिंग में आपको जो इंडिकेटर्स देता है, मे बी इट मेक्स यू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल और यू आर वरिड अबाउट इट, बट इट्स अ वेरी हेल्दी साइन. इसका मतलब है कि आपके अंदर जो चेंजेस होने चाहिए हैं वो एक्चुअली एक्टिवेट हो चुके हैं. एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्ने या पिंपल ब्रेकआउट भी ठीक हो जाएगा. इट्स ऑल्सो अ वेरी हैवी इंडिकेटर कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है. अगर बहुत समय तक आपको पीरियड्स नहीं आए हैं और अब अगर आपने PCOS आयुर्वेदिक पिल्स का कंजम्पशन स्टार्ट किया है, तो इसकी वजह से जो आपका नेचुरल ओव्यूलेशन प्रोसेस इंड्यूस किया है उसकी वजह से भी एक्ने आ सकता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जब हम कॉन्स्टिपेशन और एक्ने की बात करते हैं, इसका रूट कॉज अगेन इज इन द काइंड ऑफ फूड यू ईट, द काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली आपके मील टाइमिंग्स को लेकर और जिस तरह से आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है. आयुर्वेदा में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस खाने पर दिया है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया है ऑन द पावर ऑफ डाइजेशन. आपका फूड जिस तरह डाइजेस्ट हो रहा है वो आपके बॉडी में जाके अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो प्लीज़ रिमेंबर 2 things. One is medicines and the second thing is diet. ये दोनों चीज़ आपको ठीक से करनी है. If you are experiencing any kind of hair fall, hair loss, and I know that this can be very unnerving, let me assure you that these pills do not cause any of these problems. Just in case अगर आपको कोई भी इस तरह के symptoms महसूस हो रहे हैं, which is bloating या nausea या you feel acidity या आपको gaseous लग रहा है, please remember that ये medicines कोई भी इस तरह के साइंस या सिम्टम्स नहीं डेवलप करता. इट्स अगेन लिंक्ड बैक टू योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल, एंड विच इज़ वाई हम मेडिसिन्स के साथ गाइनोवेदिक डाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. गाइनोवेदिक डाइट आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर ताकि आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो. सो हमेशा याद रखना है कि medicines alone cannot do any magic. The magic is a combination of medicines and the right food and the right habits that you consume.
अगर आप इस मेडिसिन के साथ कोई भी दूसरे मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, द ओनली थिंग टू रिमेंबर, जो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं विथ द आयुर्वेदा पिल्स, दैट यू शुड नॉट कंज्यूम अलॉन्ग विद दिस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एनी काइंड ऑफ हार्मोनल पिल्स। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है और इसके एक्शंस आर एब्सोल्युटली द रिवर्स। सो विच इज़ वाई हम एक चीज़ जो हमेशा रेकमेंड करते हैं इज़ व्हेन यू आर टेकिंग PCOS आयुर्वेदिक पिल्स, प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम दिस काइंड ऑफ मेडिसिन्स। आपके दूसरे मेडिसिन्स जो हैं वो आप इजीली इसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप यू आर नाउ वेरी कंफर्टेबल विथ अंडरस्टैंडिंग कि आफ्टर कंज्यूमिंग दीज पिल्स what are the signs that one can get and what does that mean. I want you to only remember one thing. Ayurveda medicines do not cause any side effects. They only give you side benefits. And what are some of the side benefits that you can see? One, of course, is increased energy levels, everything to do with good hair and nourishment, everything to do with good skin. And also in some cases, it's very interesting when we got this feedback. One of our customers जो 6 महीने से ये मेडिसिन ले रही हैं, जब लास्ट वीक में उनसे बात कर रही थी, शी मेंशन्ड कि उन्होंने नोटिस किया कि ये पिल्स लेने के बाद उनका जो कफ एंड कोल्ड का यूजुअल प्रॉब्लम होता था वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज जैसे पहले हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन की वजह से अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड कफ एंड कोल्ड का भी मेन रीज़न होता है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। और बिकॉज ये पिल्स पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इट वॉज ग्रेट टू सी कि उन पर जो कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम था वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया। सो नो साइड इफेक्ट्स, ओनली साइड बेनिफिट्स। PCOS आयुर्वेदिक पिल्स आपके बॉडी में जो सेल्स है उनका जो मेटाबॉलिज्म है उनको बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से सेल्स न्यूट्रिएंट्स बड़े आसानी से ले सकती है और आपको वेट लॉस कराने में मदद कर सकती है। ये जो वेट लॉस है वो सारी ही औरतों में एक जैसा दिखाई नहीं देता, ये डिपेंड करता है कि आपका PCOS किस कैटेगरी का है उस पे। इसके साथ ही इन PCOS आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर आप गाइनोवेदिक डाइट फॉलो कर रहे हो तो ही आपको वेट कंट्रोल और वेट लॉस जैसे इम्प्रूवमेंट्स अच्छी तरीके से दिखाई दे सकते हैं। Hi, I'm Mansi. I'm 25 years old. I come from a Gujarati family. I love cooking and I also love eating food and enjoying my life. I am facing the problem of delayed periods, due to which I am gaining a lot of weight. Then me and my mom, we went to get the test done and then we recognized that I have been diagnosed with PCOD. We tried a lot of home remedies and also allopathic medicines, but nothing worked for me. After that, one day I was going through my Facebook profile where I just saw the ad of Gynoveda. I shared the same with my mom and she encouraged me to go ahead and take PCOS relief kit. I started consuming the Gynoveda PCOD pills. It was in the initial day very difficult for me to consume it. My mom, she convinced me to go ahead and consume the pills. I started consuming the pills again. I was happy when I got my spotting after 10 days. But I was more happier when I got my periods naturally after 40 days of consuming the pills. I was also following the diet which was being recommended by Gynoveda. It's been 4 months now I am consuming the pills. As I have got my periods naturally every month, I have also lost 4 kgs weight. Now I am feeling very energetic and even I am not getting mood swings anymore. I have also joined their Facebook community, that is Circle of Sisterhood, where I came to know that my PCOD is a severe case and I might have to consume it for 1 year. But I am very confident that this kit will help me get freedom from my PCOD. हमारी कम्युनिटी में कई सारे विमेन सीवियर PCOD से सफ़र हो रहे थे और फिर भी उन्होंने नेचुरली बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीव किया। PCOS में इनएबिलिटी टू कंसीव ये बहुत ही कॉमन है और ये होता है 2 चीज़ों की वजह से।
सबसे पहली चीज़ है कि PCOS की वजह से आपकी एग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ढंग से नहीं हो पाती, एग का अच्छा साइज अचीव नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन यानी कि एग रप्चर भी टाइम पे नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि आपके यूट्रस के अंदर का लाइनिंग भी उतना रिसेप्टिव नहीं बन पाता। PCOS आयुर्वेदिक पिल्स में जो हर्ब्स डाले गए हैं वो आपकी एग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नेचुरली स्टिमुलेट करते हैं और ऑन टाइम ओव्यूलेशन भी कराते हैं। इसके अलावा ये आपके यूट्रस के अंदर के लाइनिंग की रिसेप्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा देते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है कि आपके इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से आप ये मेकआउट ही नहीं कर पाते हो कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। ओव्यूलेशन होने के बाद एग जो होता है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही वायबल रहता है और इन 24 आवर्स में आपको आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहना कंसीव करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए आपको यूज़ करने चाहिए ओव्यूलेशन डिटेक्शन स्ट्रिप्स जो आपको आपके पास वाले मेडिकल में मिल जाएंगे। इन ओव्यूलेशन डिटेक्शन स्ट्रिप्स के अंदर आपको एक छोटा पैम्पलेट मिलेगा कि इनको यूज़ कैसे करना है, बट जनरली ये टेस्ट आपको दोपहर को ही करनी चाहिए 12 से 3 बजे के दरमियान। ये टेस्ट आपको दिन के फिक्स टाइमिंग पे ही करनी चाहिए। इसमें जब आपको 2 डार्क लाइन दिखाई देती है तब आपका ओव्यूलेशन हो गया है ऐसा आप समझ सकते हो और उस वक्त आपको आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहना बेहद ज़रूरी है। PCOS आयुर्वेदिक पिल्स के साथ सक्सेसफुली कंसीव होने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? आपको ये PCOS आयुर्वेदिक पिल्स सही मात्रा में राइट डोसेजेस में कंटिन्यूसली विदाउट गैप लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो गायनोवेदिक डाइट बताई गई है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताया, आपको ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स के मदद से आपका ओव्यूलेशन डिटेक्ट कर लेना चाहिए। ये सारी प्रोसेस अच्छी तरीके से फॉलो करने के बाद भी अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप जल्दी से कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर का सीमेन एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक विमेन में भी कंसीव करने के लिए ट्यूब्स का पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो ओव्यूलेशन के अलावा भी कंसीव करने में दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो आपको लोकल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आपके आगे के टेस्ट करवा लेने चाहिए। When I started knowing that I have PCOS is I think in 2017 I moved to Sydney to do my masters. When I came back I started noticing there were like certain changes in my body. The periods were coming late, so I had a word with my mother and we went to a local gynecologist. She directly put me on this 21-day pill. I started noticing I was growing fatter. I started getting hair on my chin and then she told me, call your husband, you people should not delay in conceiving because you may have issues. She asked me to go under a sonography scan and she gave me a report saying that likely PCOS. That's how. So I was in all that dilemma and then I happened to meet Dr. Aarti and she told me that there's no problem with you. I would request you that you start with our medicine. I had a word with my mother again that I've met with this Ayurveda doctor and she's really recommending this. Should I start with it? Then I did one round of Maida and Neem. I did not get my period. Next I did another one. I did get my period. And then suddenly I started feeling pukey and all that feeling. Then I had a word with Dr. Aarti that again I'm not getting period. I just got my period, now I'm not getting my period. Then she told me go and check your prolactin because you always get stressed. Suddenly what I thought is why don't I get my pregnancy test done too, because I'm anyways giving my blood. The HCG went up. I had discussed with Dr. Aarti why is this HCG gone up. So she just told me congratulations Kinjal, you have conceived. While I started taking Gynoveda, I kind of noticed in reduction of my waistline. I could see visible difference in my skin. So I started doing intermittent fasting. So that's how my whole 3-month history with Gynoveda. Thank you Kinjal, thanks a ton. PCOS में मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है।
मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ में आपके चेहरे पे एक्सेसिव हेयर आने लगते हैं, खास करके अपर लिप्स पे, चिन पे, चेहरे पे ये एक्सेसिव बाल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम सभी लड़कियों में दिखाई नहीं देता। ये जो सिम्टम है वो PCOS के एडवांस स्टेज में ही दिखाई देता है। इसीलिए PCOS की सही समय पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ यानी कि ये एक्सेसिव बाल जो बढ़ते हैं, ये वाला सिम्टम करेक्ट होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। कई सारी लड़कियां मुझसे हमेशा सवाल पूछती है कि उनको इन मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ की वजह से काफ़ी ऑकवर्डनेस महसूस होती है। सोशल प्लेसेस पे खास करके उनको बहुत ऑकवर्डनेस महसूस होती है। तो ये जो वाला जो सिम्टम है ये ठीक होने के लिए काफ़ी लंबा समय लेता है। PCOS पूरी तरीके से ठीक होने के बाद आप जब गाइनोवेदिक डाइट अच्छी तरीके से काफ़ी समय तक फॉलो करते हो, तभी ये हेयर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। मेरी 11 साल की प्रैक्टिस में इतनी सारी PCOS की लड़कियों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया है कि PCOS के साथ थायराइड का प्रॉब्लम होना काफ़ी कॉमन है। हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो थायराइड और PCOS में कॉमन होते हैं। पीरियड इरेगुलरिटीज़ जो है वो PCOS के वजह से भी हो सकती है और थायराइड के वजह से भी हो सकती है। दोनों में ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको उसकी मेडिसिन अलग से लेनी चाहिए। PCOS आयुर्वेदिक पिल्स आपका PCOS जड़ से ठीक करती है। इसमें जो कुछ हर्ब्स है वो आपको थायराइड को ठीक करने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। वो आपकी थायराइड ग्लैंड को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए PCOS आयुर्वेदिक पिल्स लेने के दरमियान अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड की गोलियां भी चालू रखनी चाहिए। अगर आप ये थायराइड बैलेंस्ड नहीं रख पाते हो तो इसका सीधा असर पड़ता है आपकी PCOS रिकवरी पे। इसकी वजह से आपकी PCOS की रिकवरी स्लो डाउन हो सकती है।